جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار بھی خوشامدید کہتے ہیں پروگرام یورپ کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو لائیو پروگرام جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خواجہ امتیاز صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، محترمہ نباز شیری جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنی بات کے نام سے کالم لکھتی ہیں، آپ ان کے کالم پڑھتے رہتے ہیں۔ حبیب جان صاحب ایک اہم ترین شخصیت ہے برطانیہ میں، پاکستان پیپل پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، ممبر سندھ کونسل ہیں، اور آج حبیب جان صاحب ایک بہت ہی ذمہ دار شخصیت پاکستان پیپل پارٹی طور پر یہاں پر ہے، نمائندگی کر رہے ہیں حکومت کی۔ حبیب جان صاحب، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے نومبر اور دسمبر جو ہے وہ بہت ہی بھاری مہینہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں کہوں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا۔ حق صاحب، یہ شیخ صاحب اور اس کے قبیلے کے لوگ جب سے حکومت آئی ہے، کہتے جی مارچ میں گئی، سینٹ کے الیکشن کے بعد گئی، زلزلے کے بعد گئی، سیلاب کے بعد بھی گئی، پھر میں کہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلی، بہت نکلے شیخ تیرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ اچھا، محمود صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ اب تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں جی جی وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ کریں گے، ہم گا گے اور گی، یہ جو تین الفاظ ہیں ان بیانات میں بہت زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ پیپل پارٹی سر فہرست ہے، میرا یہ کہنا ہے۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی ان گا گے اور گی کی پالیسی سے ہٹ کے کام کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، فارسی میں تو گا گے گی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، بلوچی میں بھی مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اردو داں ہونے کی ناطے مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ نے پہلے تو ہم پہ ظلم کیا کہ آپ آگے بڑھ گئے۔ حق صاحب، یہ بات میں بتا دوں، آپ پاکستان میں آپ جب بھی بیلٹ کریں گے تو پیپلز پارٹی کو آپ شکست نہیں دے سکتے، اور جب بھی آپ بلٹ استعمال کریں گے تو پھر آپ اعتاد ہوں گے یا حکمران ڈکٹیٹر ہوں گے۔ آج 2 سال جمہوریت چلی ہی کیا تھی کہ لوگوں کی پیٹوں میں مروڑیں ہو گئی۔ آج سے امتیاز صاحب نے کہا کہ پہلے کنگ پہلے ہوتا تھا، پارٹی بعد میں بنتی تھی، پارٹی پہلے بن رہی، کنگ کو تلاش کیا جائے گا۔ حمید گل پیپل پارٹی کے لیے فکر انگیز ہے نا یہ جو گٹ جو ہو رہے ہیں، جو تو میں نے کہا نہیں، سب بندیاں ہو رہی ہیں۔ اب زرداری صاحب یقیناً اس وقت اکارڈنگ ٹو شہید محترم بینظیر بھٹو کی ول کے مطابق وہ میری پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ آئی ریسپیکٹ ڈیسیزن واٹ ایور جو بھی لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ کی 25-24 نشستیں ہیں، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ہم بے بس ہیں۔ آپ آ جائیں نواز شریف صاحب کو مساوی جمہوریت بھی سگنیچر کرنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا جس کو جمہوریت کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ مگر وہ تو کہتے ہیں مساقی جمہوریت پاکستان پیپل پارٹی نے عمل نہیں کیا۔ وہ نہیں دیکھیں مسئلہ کہ یہ مساقی جمہوریت میں پاکستان پیپل پارٹی چلی۔ پالیٹکس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کول و فیلو میں تضاد ہے، پردے کے پیچھے وہ کیا کرتے ہیں اور پردے کے آگے کیا ہوتے ہیں، عوام کو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں آج پھر ہی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس حکومت کو چلنے دیں، چاہے جتنی کرپشن زرداری صاحب کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، گیلانی صاحب کو کرنے دیں، کیا نام ہے راجہ صاحب کو کرنے دیں جو ہمارے منسٹر ہیں بجلی کے، لیکن اس کا فیصلہ دیکھیں۔ میں دوبارہ آتا ہوں جی، یہ آپ نے بات کی جی کہ کرپشن جتنی بھی کرنے دیں آپ، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ میں دوبارہ حبیب جان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں۔ جی محترمہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک کا تو کوئی حال نہیں۔ اچھا، جو سیاستدان ہیں وہ تو اپنی اپنی کرسی کے لیے رو رہے ہیں، ٹھیک۔ ملک کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں، غریبوں کا کوئی بھی نہیں سوچتا۔ جو انڈیا ہے کبھی اس نے جہاں آ کر کوئی اپنے گھر کا سورٹ آؤٹ کیا اپنے ملک کا؟ ہمارے سیاستدان اٹھتے ہیں تو آ کر جہاں انگلینڈ میں آ کر تماشا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں اپنا گھر میں بیٹھ کر نہیں کوئی بات کرتے، جہاں آ کر سب کچھ بس اس کا سورٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ مشرف تھا، اس نے جو پیسہ لوگوں کو دیا، کھلایا، اپنا آپ جتنا نکالنا تھا نکالا تو وہ باہر آ گیا۔ تو اگر پاکستان نے اتنا لوگوں کو پیسہ دیا، اربوں کے خربے دیے، اگر کوئی ذمہ دار 4000 روپے بینک سے لے لے تو وہ اس کو کبھی معاف نہیں کوئی کرتا، اس کا سامان ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی، حبیب جان صاحب سے بات کرنی تھی ذرا۔ جی ایک سیکنڈ، آپ کی حبیب جان صاحب سے بات کراتے ہیں۔ کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی آفتاب باغی بول رہا ہوں جی، لندن سے۔ آفتاب باغی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، حبیب جان صاحب سے بات کیجیے۔ جی جی السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم حبیب صاحب، میں صرف ابھی آپ نے بات کی کہ جی کہ
पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर टारगेट क्यों हुई? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप ये भी बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग में कौन मुलव्वस है, तो आप उसको क्यों जो है वो ओपन नहीं करते हैं और कि उसके पीछे कौन है, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? और दूसरी बात कि आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत से आपका ताल्लुक है और आपने यहाँ लंदन के अंदर जो है वो एतवार को जो है वो मुजाहरा करने का ऐलान किया, तो क्या आप अपनी हुकूमत के खिलाफ ये मुजाहरा कर रहे हैं या कि लोगों को बताना चाहते हैं कि आपको लोगों को बताना चाहिए? ठीक है आफ्ताब बागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये इस बारे में मैं हबीब साहब को जरूर मौका दूंगा, वो आपका जो सवाल है जो भी आपने पूछा वो जरूर उसका जवाब देंगे। आपने भी हबीब भाई ये बात की है कि जो कुछ भी जो कर रहा है उसको करने दें। आपको क्या लगता है कि आप उनको रोकने की कोशिश करें तो वो रुक जाएंगे? वो क्या नहीं कर रहे आपके कहे बगैर? देखिए, जब हम कहते हैं कि जी लंगड़ी लूली जमहूरियत अमृत से बेहतर है, आप तस्वुर करेंगे इस वक्त लंगड़ी लूली जमहूरियत है, ठीक है जी। पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेंगे इलेक्शन में कि जरदारी साहब को कंटिन्यू करना या नहीं करना। ये सो कॉल्ड एंकर्स या ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह को कोई हक नहीं पहुंचता कि जनाब के किसी एक रिपोर्ट पे आप धर्म करके किसी को बाहर निकाल दें। आप मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करूंगा, ठीक है जनाब। ये तो मैं बताऊं कि जनाब के उसकी रिपोर्ट में अगर आप पढ़ें गौर से तो उसने कस्टम्स को और अदलिया को, जुडिशरी को करप्ट करार दिया। ये हमारा टॉपिक नहीं है ना। अच्छा, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। ये मुत्तहदा मुस्लिम लीग बनी जी, ठीक है। आप कहते हैं जी कि आपके लिए टेंशन नहीं है, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा इशारा मिला हो जो आप जाके परवेज लाई साहब के पास जाके बैठो। तो देखे ना आप, जब हमें देखे ना हर आदमी को ये हक हासिल है कि अपनी सबबंदी करे अकॉर्डिंग टू दस्तयाब सूरत हाल, ठीक है ना जी। आप पहले तो बताएं कि मुत्तहदा मुस्लिम लीग बनने की सूरत क्यों पैदा हुई। वो लोग जो 2 साल बाहर रहे पावर से, उन्हें अब बड़ी बाबर अवान साहब का परवेज लाई साहब के पास जाने की क्यों सूरत पैदा, ये मुझे इसका जवाब दीजिए। देखें, जब हमें ये इल्म हुआ कि जनाब के पीछे से मियां साहिबान या अल्ताफ साहब वगैरह जो भी हैं कोई मूव्स हो रही है, जैसे शेख रशीद साहब आपने खुद कहा अपनी बात में कि कल हो गए 9-0, अब वो कहते हैं जी इससे अच्छी बात भी नहीं, एक तरफ आगे कहते हैं जी 12 मई का भी मुकदमा चला है। परवेज लाई साहब क्यों, कोई और क्यों नहीं, चौधरी शिराज के पास क्यों नहीं गए, जनरल सेक्रेटरी क्यों नहीं गए, काफ के जनरल सेक्रेटरी के पास क्यों नहीं गए? अंदर इस वक्त काफ के पास अददी एतबार से कुछ है मेंबरान 50 या अबव 50, उनको परवेज लाई को एतमाद में लेने के लिए गए थे। देखें जी, एक बात होती है कि जनाब की कल करा को कोई भी बात असेंबली के अंदर आती है तो असेंबली के अंदर जो गवर्नमेंट पावर के अंदर है या पार्लियामेंट में जिस मुख्तसर बता दें कि जो बीबी ने यहाँ से जाते हुए ईमेल की जी, उसमें तीसरे नंबर पे परवेज लाई का नाम था जी। कहाँ पे स्टैंड करते हैं आप? देखिए, अल्लाह ताला को जाके बताएं। बैसित कारकुन के मैं आज भी मोहतरमा की उस ईमेल को, उनके बयानात को रिस्पेक्ट देता हूं और उनका कहा मैं गलत नहीं करार देता, लेकिन जो आज की दस्तयाब सूरत हाल के मुताबिक असेंबली के फ्लोर पे जरदारी साहब ने कहीं ये नहीं कहा कि जनाब कि हमने उनको नहीं कहा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो मामला चल रहा है। जरदारी साहब की मुशावरत से नहीं गए होंगे ये बाबर वाले? आपसे मेरी बात तो सुन लेना सर कि जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो सूरत हाल अददी भी एतबार से बनने जा रही है या होने वाली है, तो एक गुफ्तगू करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कहीं ये नहीं कह दिया जरदारी साहब ने या बाबर अवान ने या हबीब जान ने। अच्छा मैडम, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प, मेरे लिए बड़ी एक दिलचस्प बात है कि मैं अगर कहता हूँ कि मैडम हबीब जान ने जो है वो मेरे किसी रिश्तेदार को कत्ल कर दिया, ठीक है। अब अगर कहीं पे सियासत या सियासत में मजबूत हाथों को मजबूत करने के लिए कोई मुझे कदम उठाना चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर हबीब जान से मेरी जो अगर मुशावरत से मेरे जो हाथ मजीद मजबूत होते हैं तो मुझे वो जो मैंने इल्जाम लगाया था, ठीक है, या वो अब एक तरफ ये कहते हैं जी कि मोहतरमा बेनजीर शहीद, बेशक मैं भी मानता हूँ कि बहुत बड़ी लीडर थी, अब ये खुद भी मानते हैं। और जब फिर आप ये देखिए कि जब मैडम मोहतरमा बेनजीर शहीद का जब नाम आता है तो इन लोगों के जो कारकुनान हैं, जो असल पीपल पार्टी के कारकुनान, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ये कह रहे हैं जी कि वो जब सफबंदी हो रही है तो उसमें ये चीज जायज है। अब आप इस चीज को कैसे लेती हैं कि ये जो इनकी आपस में ये जो मुलाकात हुई है और ये अब इस बारे में आ ही नहीं रहे, इस तरफ आ ही नहीं रहे कि बीबी ने यहाँ से जाने से पहले ईमेल की थी और तीसरे नंबर पे जो है वो नाम था कि मुझे इन लोगों से खतरा है। इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ आऊं, मुझे पहले ये बताइए कि ये जो सारी बहस चल रही है, ये जो आज आपका मौजू है कि इत्तेहाद बन रहे हैं, सियासत में क्या हो रहा है, आम आवाम का रद्द अमल कहाँ नजर आता है? हमें सिर्फ टीवी के प्रोग्राम्स में रद्द अमल नजर आता है, हमें सिर्फ अखबारात की हद तक नजर आता है।
अवाम क्यों नहीं उठ रहे? अवाम को कौन रोक रहा है? सारे अगर करप्शन है या अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं तो समझता हूँ कि आवाम जो है वो बहुत बेस है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ जी, हम हमारे साथ कॉलर में जुड़ते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, और ये हमारे आज के आखिरी कॉलर है, इसके बाद हम कॉल नहीं लेंगे क्योंकि हमें जो नाज़रीन हमारे मेहमान है उनसे बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमान साहब खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? आपको और आपके मेहमानों को सलाम। बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी पे बात, हक साहब आप भी उनके साथ मिल जाते हैं, पोलिटिकल पार्टी जो सर जी मुझे ये रमान साहब समझ नहीं आती कि वो जो बात मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे नाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं, जो अवाम, जो बेहिस अवाम जो है पाकिस्तान में जो मौजूद है, जो बार बार इन लोगों को आगे लेके आती है, उनकी आवाज थोड़ी सी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको तक भी कोई मैसेज पहुंचे, मगर उस पर बात ही नहीं हो रही। अब ये देखे ना कि बीबी ने यहाँ से जाने से पहले तीसरे नंबर पर नाम था परवेज इलाही साहब का, बाबर रहमान साहब जो वजीर कानून है और इस वक्त अहम तरीन शख्सियत है काबीना की, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मुशावरत करके हर जगह पे हर काम जो करते हैं। अब वो परवेज इलाही साहब से मिलने ही चले गए। को सुनाता हूँ, पॉलिटिक्स हक साहब जी, पॉलिटिक्स supposed to be the second oldest profession in the world, and as far as Pakistan is concerned, it is very resemblance to the first one. And I think the people उनको समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी बात, ये आपके पास पीपल पार्टी के लोग बैठे ये जमहूरियत की बातें कर रहे हैं कि लुंगी लंगड़ी जमहूरियत आमरीत की अच्छी होती है। इन वडेरों के जिन वडेरों के पांच रेलवे स्टेशन इनकी जमीनों पर आते हैं, जिस इंसान के पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, जिसके सर पर छत अपनी नहीं, उसकी अपनी राय कैसे हो सकती है? आप कहते हैं इनको वापस चुन लेते हैं। इंसैनिटी, accept insanity. Keep on electing the same people over and over again and expecting different results. मैं आपको घड़ी मुड़ी एक ही काम करता जाऊंगा, जो आप मैं कहूँगा रिजल्ट डिफरेंट होगा, आपका कैसे हो सकता? तीसरी बात उन्होंने की इमरान खान साहब की, वो बैठे हैं। इमरान खान साहब विल बी जस्ट अ प्रेशर ग्रुप। वो कभी भी 15 साल हो गए उनको एक से दूसरी सीट नहीं मिल रही। ये माफिया है, ये नहीं बनने देंगे। जब रेवोल्यूशन आता है विदाउट द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन नहीं आता। मैं आपको सुनाता हूँ कि जब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हमारे जो लोग हैं ना, जिसकी तनख्वाह घर में आई है, तो वो तनख्वाह की या माँ बाप के लिए दवाई लेगा, या बच्चे की फीस देगा, या बिजली का बिल देगा। जब ये चीजें नहीं ना होंगी साथ, उस वक्त रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है रमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त जरा कम है, आंदा प्रोग्राम में आपसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मैडम, बात हो रही थी अवाम की। अब ये देखिए कि अवाम जो है, जिस तरह आप बात कर रही हैं, मैं ये तजिया निगारों के मुताबिक ये आपको बता देता हूँ कि इस वक्त अवाम जो है वो इंतहाई बेहिस कौम बन चुकी है। हमारे एक बड़ी सीनियर हसन निसार साहब है, कॉलमिस्ट है, वो कहते हैं जी कि उन्होंने तो लगभग गालियां निकाली है ना अवाम को। उन्होंने कहा जी कि आप आज भी इन्हीं की बात, आज भी इलेक्शन करवा लें, पीपल पार्टी को वोट देने अवाम। अक्सर मैं आपको एक तो पहले जो सवाल था आपको, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कूजे में बंद करूं कि ये जो परवेज इलाही साहब से मुलाकात है बाबर रहमान की, उसको आप सिर्फ एक जुमले में ये समझ लीजिए कि वो हुब्बे अली नहीं है, वो बुग़्ज़े माविया। ठीक, कि वो परवेज इलाही साहब से मुलाकात नहीं है, असल में वो बाकी उन तमाम जो अफराद हैं या जो पावर्स हैं उनको अपनी पावर शो करने के लिए कि अगर तुम ये कर सकते हो तो हम भी ये कर सकते हैं। ये एक वो सिनेरियो बन गया। उस चीज को भूल गए कि वो जो उनके साथ ज्यादती हो गया, वो पार्टी का जो सासा गया वो भूल गए। सियासत जो है ना वो प्रेजेंट में चलती है। अगर माजी के में चलेगी तो फिर माजी में तो नवाज शरीफ के साथ भी पीपल्स पार्टी नहीं बैठ सकती। फिर तो फिर आप पीछे चलते जाए तो बहुत सी हिस्ट्री आपको खंगालनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बात तो आपकी इस बात से ख्वाजा इम्तियाज साहब जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। ख्वाजा साहब, आप तो एक मुस्कुराहट की वजह भी बताइए।